Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all to Shri Ram Public School online classes. Today I welcome you in this chapter Weaver, Iron Smelter and the Factory Owner. In this chapter today we are going to see the new topic, that is the Indian market in the European country. मीन्स इंडियन प्रोडक्ट आर गोइंग टू सोल्ड इन द यूरोपियन मार्केट. ऐसा क्या हो गया कि यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट सोल्ड होने लगे. ठीक है, बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, 18th century is a period during which the Indian textile cloth were famous in the European continent. Okay. Wool and silk maker in England began protesting against the import of the Indian cotton textile. सिचुएशन ब्रिटेन की, इंग्लैंड की इतनी वर्स्ट हो गई थी कि लोग वहाँ पर भी वहाँ के अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेस करने की जगह पर इंग्लैंड से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके पहन रहे थे, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही थी. ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of the printed cotton textile change in England, which was made in India. Interestingly, this act was known as the Calico Act. At this time, textile industry had just begun to develop in England. उस टाइम पे बस इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट ही कर रही थी. तो इंग्लैंड गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि अगर ऐसे सिचुएशन में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड इंग्लैंड में इंक्रीज़ हो गए तो इंडियन प्रोडक्ट के आगे इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होने का सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा. इसीलिए उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया था दैट नो वन विल बाय द प्रोडक्ट ऑफ चीन्स फ्रॉम इंडिया. And at this time, the textile industry had just begun to develop in England, unable to compete with the Indian textile. और हमारे इंडियन कंपटीशन मतलब इंडियन प्रोडक्ट के आगे इंग्लैंड के प्रोडक्ट का कंपटीशन करने का कोई लेवल ही नहीं था. इंग्लिश producers wanted to secure the market within the country by preventing the entry of the Indian textile. इसीलिए वो चाहते थे कि इंडिया से कोई भी कॉटन टेक्सटाइल हमारी कंट्री में ना आए, ताकि इंग्लैंड में जो भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा है लोग वही गुड्स खरीदें. ठीक है, जिससे एटलीस्ट इन इंग्लैंड में इंग्लैंड के प्रोडक्ट का डिमांड हाई रहे. द फर्स्ट टू ग्रो अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन was the calico printing industry. Indian designing are now imitated by and printed in England. अब जब देखा गया कि बैनिंग करने के बावजूद लोग थोड़ा बहुत डिमांड कर रहे हैं तो इंग्लैंड ने ये सोचा कि लोग इंडिया के प्रोडक्ट का डिमांड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न देयर डिमांड डिज़ाइनिंग देयर क्वालिटी. सो लेट्स कॉपी इट देयर. सो सेम means here the Britishers started copying the design of the Indian textiles and they started making the same to same product how the India textile were going to produce, so that by this way they are grabbing the market of their own product in their own country and stopping the demand of the Indian goods in the England. Competition with Indian textile also lead to search for technological innovation in England. और इसी वजह से कंपटीशन लेवल को इंक्रीज़ करने की वजह से इंग्लैंड में नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ. In 1764, the spinning jenny was invented by the John Case, which increased the productivity of traditional spindle. ये एक मशीन का उन्होंने इन्वेंशन किया. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय द रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 revolutionized the cotton textile weaving. क्लोथ कुड नाउ बी वोवन इन द इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू. मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा और वो भी चीप रेट में. हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th century. फिर भी इंडियन टेक्सटाइल के आगे इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतनी फेमस नहीं थी. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड enormous profit out of this flourishing trade. These companies purchased the cotton and silk textile in India by importing the silver, but as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import the precious metal to buy the Indian goods. Instead, they collect the revenue from the peasant and zamindar in India. Situation देखिए कैसा था. इंग्लैंड और बाकी के यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज़
इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल के फैब्रिक परचेस करते थे, जिसकी वजह से क्वालिटी प्योर ऑफ मटेरियल की क्वालिटी प्योर मिल रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो भी डिज़ाइनिंग इंडियन कंपनी अपने टेक्सटाइल्स पे पुटअप कर रहे थे, द सेम दे वेयर कॉपी। बाय दिस वे दे द गुड्स वेयर मेड इन देयर ओन कंट्री सेम टू सेम एज मेड इन इंडिया। So the people were demanding the same in their own country instead of taking the goods from the India। इस तरह से उन्होंने इंडियन गुड्स के मार्केट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में जब अर्ली 18th सेंचुरी का पीरियड था, ये वो दौर है जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आया था, तो उस टाइम पे उन्हें कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल ख़रीदने के लिए मेटल्स, प्रीशियस मेटल खर्च करने पड़ते थे। लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल पावर इनके ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, तब वो हमारे यहाँ से ही कॉटन सिल्क टेक्सटाइल ख़रीद के जाते थे बिना पैसा दिए, क्योंकि अब इसको ख़रीदने के लिए जो इनको पैसों की ज़रूरत होती थी, दे वेयर कलेक्टिंग फ्रॉम द पीजेंट ज़मींदार एज अ लैंड रेवेन्यू एंड यूज़ द रेवेन्यू सेम टू बाय द प्रोडक्ट। यानी हमारे कंट्री के पैसे को यूज़ करके हमारे कंट्री से वो फैब्रिक्स ख़रीद के ये लोग जा रहे थे। ठीक है, इस तरह से इंडियन इंडस्ट्री को इन लोगों ने अफेक्ट किया था। नाउ हु वेयर द वेवर, हम लोग वेवर्स किसे कहते हैं? अ वेवर ऑफ्टन बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज इन वेविंग। ये एक कम्युनिटी है जो इसी काम में बहुत शातिर होते हैं। देयर स्किल वेयर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में एंगेज होती है। द तांती वेयर ऑफ द वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलासा और मोमीन वेवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, साल एंड कैकोलार एंड देवांग ऑफ द साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। ये अलग अलग नाम है जो वीवर्स का काम में फेमस थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वॉज स्पाइनी, मीन्स क्लोथ प्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमन। द चरखा एंड द टकली वेयर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू ये लोग घर पर ही सूत काटते थे। स्टूडेंट, इसके बारे में आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो आपको ये पता होगा, बिकॉज इन आवर यूपी ऑल्सो मोस्ट प्लेसेस द वुमेंस वे आर डूइंग दिस। मतलब इसको हम लोग सूत काटना बोलते थे। कई लोग ये हमारे यूपी में भी काम किया करते थे। द थ्रेड वॉज spun on the charkha and the rolled on takli. When the spinning was over, the thread was woven into the cloth by the weaver. In most of the communities, weaving was task done by the man. For color textile, the thread was dyed by the dyer known as the rangrez. For printed cloth, for weaver needed the help of the specialist block printed, knowing the chipigar, handloom weaving and the occupation association with it provided the livelihood for the million of the Indian. By this way, most of the people were earning their livelihood. Okay, so we'll stop here only, student. If you having any doubts, so you can ask me in the evening lecture. Till that, stay home, stay safe, take care, have a nice day.